Hello students of class 12. Welcome to our video that is for class 12th student, and today's topic we are going to deal is pointer arithmetic. So we have already covered in two previous video what is pointer, what are the functions we do with the pointer, what are the symbols we use with the pointer. So pointer is a variable which holds the address of another variable. It is used for dynamic allocation and it is also used with array for the fast access. So now we will see the arithmetic which we will do with the help of pointers. So C++ language allows you to perform integer addition and subtraction ऑपरेशन ऑन पॉइंटर. पॉइंटर्स के थ्रू आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. If ptr points to an integer, ptr plus 1 is the address of next integer memory after ptr. Plus 1 करने से आपका एड्रेस लोकेशन आगे जाएगा और -1 करने से प्रीवियस इंटीजर में आएंगे. लेकिन +1 और -1 का मतलब ये नहीं होगा जो कि आप प्लस प्लस करते थे और माइनस माइनस करते थे, ये उसमें एक ऐड होता है वैल्यू में. बट पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ये पॉइंटर का डेफिनेशन होता. तो इसमें जो भी प्लस प्लस होगा दैट इज विद द एड्रेस. ये हमेशा याद रखिएगा. ptr प्लस 1 या ptr प्लस प्लस, ptr माइनस 1 या ptr माइनस माइनस किसके साथ करेगा? तो एड्रेस के साथ करेगा. सो ptr plus 1 does not return the memory address after ptr but the memory address of next object of that type that ptr points to. type मतलब इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट्स है, so point करेगा. If ptr points to an integer assuming 4 bytes, ptr 3 means plus 3 means 3 integer after ptr, which means 12 memory address after ptr. 4 में +3 ठीक है. If ptr points to a char which is always 1 byte, हाँ तो char में तो 1 byte लेता है इसलिए वो 1 ऐड हो जाएगा. So ptr 3 means 3 char after ptr, which 3 memory address after ptr. When calculating the result of the pointer, the arithmetic expression, the compiler always multiplies the integer operand by its size of the object being pointed to. This is called scaling. What is scaling? Scaling means the compiler multiplies the integer operand by its size of the object being pointed to. Now we will see with it some examples. We can do some arithmetic operations on pointer. Z equal to asterisk ptr asterisk 2, z equal to asterisk ptr plus 10, z equal to asterisk ptr divided by 3. तो ये नहीं हो सकता. डिवीजन पॉसिबल नहीं है पॉइंटर के साथ. पॉइंटर के साथ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो ptr प्लस प्लस ptr माइनस माइनस कर सकते हैं, बट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. Now if the pointer contains address of array elements, then it is possible to perform subtraction on pointer. Pointer के साथ subtraction भी possible है. p2 minus p1 इस तरह से भी कर सकते हैं. अगर आप इसको pointer declare किए हुए asterisk p2 asterisk p1 तो इसको ऐसे कर सकते हैं, वैलिड है. लेकिन in another case of subtraction, multiplication, division of pointer is not allowed. p1 plus p2 into p1 डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. Now comparison. If we can compare two pointers to know how which one is bigger and smaller. Comparison मतलब ये इससे बड़ा है, is less than, greater than, equal to, less than equal to, double equal to, तो वो भी pointers के साथ possible है. If ptr less than ptr2, if ptr1 is double equal to ptr2,
if PR1 is less than equal to PTR2, if PR1 greater than equal to PTR2। तो इस तरह का कंपैरिजन जो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू है वो पॉसिबल है। We can change the value of the variable through the value operand, ये भी कर सकते हैं। a equal to 10 ampersand a का जो एड्रेस है PTR में स्टोर कर सकते हैं। 40 इक्वल टू एस्ट्रिक PTR, ये भी एस्ट्रिक PTR इक्वल टू 40, मतलब वैल्यू 40 एस्ट्रिक PTR में है, ये भी आप कर सकते हैं। नाउ द हेल्प ऑफ प्रोग्राम int value इक्वल टू 7, वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 7 स्टोर है। एस्ट्रिक PTR इक्वल टू एम्परसेंड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू का एड्रेस है वो एस्ट्रिक PTR में है। अब सी आउट करेंगे PTR, PTR प्लस 1, PTR प्लस 2, PTR प्लस 3, सीधा आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले PTR, तो PTR में क्या है? वैल्यू स्टोर है PTR1 का, तो ये आ जाएगा वैल्यू। सो नेक्स्ट PTR प्लस 1, PTR प्लस 1 में आ जाएगा 7C प्लस 4, यहाँ है इंट का वैल्यू 4 लिया है इसलिए 80 दिखा रहा है। अगर इंट का वैल्यू 2 लेता तो ये 78 दिखाता। दिस इज बिकॉज एन इंटीजर 4 बाइट्स ऑफ ऑथर्स मशीन, जो ऑथर का मशीन है, ऐसे इंटीजर विल टेक 2 बाइट्स, लेकिन जो ये स्लाइड के प्रेजेंटेशन के जो ऑथर है उनका इंटीजर मशीन जो है वो 4 बाइट्स ले रहा है, दैट वाई इट इज इंक्रीज्ड बाय 4। PTR प्लस 1, ये 4 इंक्रीज हुआ यहाँ। PTR प्लस 2, 80 में 4, 84। PTR प्लस 3, 84 में 4, 88। सो देखिए जो भी अर्थमेटिक फंक्शंस होता है पॉइंटर के साथ, उसमें जो है वो एड्रेस में ही वो जितना बाइट्स लेता है वो डेटा टाइप उसको ऐड करता है। अगर ऑथर्स का मशीन यहाँ 2 होता तो पहले यहाँ पर होता 78, देन 80, देन 82, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स। नेक्स्ट इक्वल का वैल्यू इक्वल से 7, एस्ट्रिक PTR इक्वल टू एम्परसेंड वैल्यू, एस्ट्रिक PTR2 इक्वल टू एम्परसेंड वैल्यू, मतलब दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों में हम लोगों ने एड्रेस लिया है इस वैल्यू का। If PTR1 double equal to PTR2, C out PTRs are equal, else C out pointers are not equal। तो यहाँ पर दोनों में सेम एड्रेस है, तो यहाँ PTR1 इक्वल टू, तो इट विल डिस्प्ले pointers are equal, that will be the output। बट अगर यहाँ पर हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते, सपोज वैल्यू 2, और यहाँ पर ले लेते एस्ट्रिक PTR इक्वल टू वैल्यू 2 और तब चेक करते, तो ये एल्स पार्ट में जाता, पॉइंटर्स आर नॉट इक्वल। So pointers can be assigned to the other pointers if both are same. See, A equal to 10, asterisk B, asterisk C, B equal to ampersand A, और C में जो है वो B आ गया है, तो asterisk B और asterisk C, B में जो भी वैल्यू था वो आपका C में आ गया, तो क्या हो गया? दोनों में आ गया 10। A में था 10, ये इसमें वैल्यू asterisk B की है, B में इसका एड्रेस आ गया, और फिर जब एस्ट्रिक दिखाते हैं, ये तो B में एड्रेस आ गया। सिंपली अगर आप B करते तो ये हेक्साडेसिमल दिखाता, लेकिन यहाँ आप एस्ट्रिक भी किए हैं, एस्ट्रिक विल होल्ड द वैल्यू। सो दो सिंबल आप लोग देखे हैं पॉइंटर्स के साथ, ये एम्परसेंड, जब भी एम्परसेंड लगेगा इट विल स्टोर द हेक्साडेसिमल वैल्यू, मीन्स इट विल स्टोर द एड्रेस, दैट्स व्हाई इट इज हेक्साडेसिमल। और जब एड्रेस एस्ट्रिक यूज करेंगे तो इट विल स्टोर द वैल्यू। तो यहाँ पर आप B में स्टोर कर लिए, C में स्टोर कर लिए B, लेकिन एस्ट्रिक B और एस्ट्रिक C डिस्प्ले किए, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्ले द वैल्यू दैट इज 10, 10। Now each time a pointer increments by 1, it points to the memory location of next element of its base type. If P is a character pointer, then P plus plus increment P by 1 byte, क्योंकि कैरेक्टर जो है वह 1 बाइट लेता है, इसलिए P प्लस प्लस क्या होगा? 1 बाइट आगे बढ़ेगा। If P were an integer pointers, its value on P plus plus would be incremented by
2 बाइट्स। यहाँ मशीन पे डिपेंड करता है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर ये 4 बाइट्स है तो ये एक मशीन पे डिपेंड करता है, बट इंटीजर विल टेक 2 बाइट्स। If the increment operator plus plus will increment the value of the pointer according to pointer's type. So the address will be incremented by the size of pointer type. So the pointer will change its value and will store the address of next element of the pointer's type. For example, we have a pointer and integer array. Array के साथ है ये b एक इंटीजर है जिसका साइज 3 है, मीन्स 0 to 2। अगर आप एस्ट्रिक a इक्वल टू b करेंगे तो उसमें उसका सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। So initially this pointer store the value of starting address of the memory। तो यहाँ पर जो डिक्लेयर किए हैं दिस वन b, ये 0 to 2 होगा और उसका फर्स्ट एड्रेस जो होगा वो स्टोर हो जाएगा पॉइंटर्स में। So pointers store the value of the start address of the memory. If we'll increment a plus plus, it will change its value to the next integer in the array. ये प्लस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ arrays with pointers. Same, the decrement operator minus minus decrement the value of the pointer and it will store the address of the previous element of pointer's type. If we decrement a minus minus pointer again, it will store the address of the previous element again. ये माइनस माइनस होगा, एक एक माइनस होता जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएगा अगर आप माइनस माइनस यूज कर रहे हैं। So we can add or subtract integer value from a pointer. The addition of value n to a pointer will forward the pointer to the next n element of the pointer's type. For example, we can increment the value of the pointer to a equal to a plus 2. It will change a pointer a to store the address of third element of the array. ठीक है, a इक्वल टू a प्लस 2 वो थर्ड एलिमेंट में a में 2 ऐड करेगा और थर्ड एलिमेंट में ऐड करेगा। दिस कॉन्सेप्ट विथ इन एरे, ये एरे के साथ यूज हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एरे के साथ यूज हो रहा है। नाउ वी विल सी विथ हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। b3 नाम है और 0 to 2 है। एस्ट्रिक a में हम लोगों ने b स्टोर कर लिया है। ठीक है, सी आउट a प्लस प्लस, सी आउट a माइनस माइनस, सी आउट a इक्वल टू a प्लस 2 और सी आउट a। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। फर्स्ट टाइम a, ठीक है, ये दिखाया एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एरे है इसलिए फर्स्ट एलिमेंट। a प्लस प्लस यहाँ इंटीजर का 4 बाइट्स दिखा रहा है इसलिए 4 ले लिया। फिर ये सी आउट ए किया, 4 ले लिया। a माइनस माइनस मतलब ये फिर 4 बाइट माइनस कर दिया और फिर सी आउट ए किया तो अगेन इट विल 30। a प्लस टू मतलब 4 प्लस 4 मतलब 8, इसलिए ये डिस्प्ले कर रहा है 8 बाइट आगे दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ वी ऐड द डेटा वैल्यू, जो डेटा टाइप का जो वैल्यू होल्ड करता है उसको ऐड करता है एड्रेस में। ना पॉइंटर्स के साथ कॉमन मिस्टेक होता है, जैसे PC is a address whereas C is not an address। ये C int C asterisk PC ये रॉन्ग है। PC is a address whereas C is not an address। C equal to PC ये भी रॉन्ग हो गया। Asterisk PC is the value pointed to address where ampersand C is address। ampersand P asterisk PC ये ऐसा लिख सकते हैं, PC equal to ampersand C ऐसा लिख सकते हैं, asterisk PC equal to C ऐसा भी लिख सकते हैं। So in both cases pointer PC is not pointing to the address C। इसके लिए पॉइंटर के लिए आपको पहले इसको एड्रेस को पॉइंट करना था जो कि पॉइंट नहीं हुआ। So
with the help of pointers we can do the arithmetic operation। बस याद रखिएगा कि pointers के साथ अगर करते हैं हम तो जो data type होता है उसको increment करता है, जितना बाइट वो डेटा टाइप लेता है उतने बाइट को एड्रेस में ऐड करता है। That's all from today video. Thank you. Bye bye.